Hello students, now we are going to discuss one of the most important topic of this chapter, and that is laws of chemical combination. Laws of chemical combination. So let us take a little bit of introduction about that. All of us know that matter is made of very small particles called atoms of same element or different elements. They react with each other to form molecules and compounds. Since long, scientists are trying to establish the basis of these chemical combinations कि कैसे सेम एलिमेंट्स या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, आखिर उनके केमिकली रिएक्ट करने के बेसिस क्या है. In order to explain the basis for chemical combination, they finally proposed some laws popularly known as laws of chemical combination. तो स्टूडेंट्स यहाँ बोर्ड पे लिखिएगा laws of chemical combination. First law of conservation of mass. Second, law of constant proportion. Third, law of multiple proportion. Fourth, law of reciprocal or equivalent proportion. And finally, law of combining volumes. तो स्टूडेंट्स ये 5 लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन है जो आप इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे. एंड द फर्स्ट लॉ दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबसे सिंपलेस्ट है, और अब हम इस लेक्चर के अंदर इसी लॉ को अंडरस्टैंड करेंगे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो मेरी तरफ देखिएगा, आपने अर्लियर क्लासेस में स्टडी किया हुआ है कि अगर कोई सब्सटेंस मैटर किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट करे तो व्हाट हैपन्स during any physical or chemical change. The total mass of the reactant remains equal to the total mass of the products. मतलब मैटर ने किसी फिजिकल और केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट किया, आप चेंज में पार्टिसिपेट करने से पहले मैटर का टोटल मास मेजर कर लोगे. नाउ लेट द मैटर पार्टिसिपेट्स इन द फिजिकल और केमिकल चेंज. वंस द चेंज इज ओवर, प्रोडक्ट बन गए, और अब आप दोबारा से प्रोडक्ट का मैटर का टोटल मास फाइंड आउट कीजिए. आप देखेंगे कि टोटल मास रिएक्टेंट का जितना बिफोर द चेंज था उतना ही टोटल मास प्रोडक्ट का मैटर का आफ्टर द चेंज है. दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग द चेंज रिएक्टेंट का मास
ना डिस्ट्रॉय हुआ और ना क्रिएट हुआ। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स बिफोर द रिएक्शन is equal to total mass of the products after the reaction. In other words, during any physical or chemical change, mass remains constant. Mass is neither created nor destroyed. And this law was given by Antony Lavoisier in the year of 1789. Let us see these things from the board and then we will explain with examples. So students, look at the board. Law of conservation of mass. जैसा मैंने आपको बताया, during any physical or chemical change, during any physical or chemical change, the total mass of the reactants is equal to the total mass of the products. That is, better way में इसको कैसे भी कह सकते हैं, यहाँ फोकस कीजिए। mass can neither be created nor be destroyed in any physical or chemical change, and this law was given by, यहाँ फोकस कीजिए, एंटोनी लावोजियर। एंटोनी लावोजियर इन द ईयर ऑफ 1789। क्योंकि इस लॉ के अकॉर्डिंगली मास डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं होता है ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, इसलिए दिस लॉ इज आल्सो नोन एज, यहाँ फोकस कीजिए, लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसी का एक्सप्लेनेशन लेंगे 2 एग्जाम्पल्स के साथ। तो मैंने क्या बात आपके साथ की? वी हैव अ सबस्टेंस, लेट अस पुट दैट सबस्टेंस इन अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज। बिफोर allowing any physical or chemical change to occur in that substance, measure the mass of that substance. Now allow physical or chemical change to occur in that substance. Once the change is over, now again measure the mass of the substance. You will find that the mass of the substance before the change and the mass of the substance after the change both are same. This is possible only if during that change no mass of the substance is destroyed and no new mass is created. This means that the total mass of the reactant is conserved and no new mass is generated during the change. This is called as law of conservation of mass. 2 examples or verifications हम लेंगे। One will be covering the physical change and other will be covering the chemical change. तो here is the verification number 1, फिजिकल चेंज को कवर करेगी ये। स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए मैं एक फ्लास्क लेता हूं, मैंने कोई कॉनिकल फ्लास्क लिया and in that conical flask I take some cubes of some pieces of ice. तो मैंने क्या किया, एक कॉनिकल फ्लास्क ली, कॉनिकल फ्लास्क में सम पीसीस आइस के लिए, और मैं कॉनिकल फ्लास्क को टॉप से पूरा सील कर देता हूं कॉर्क को यूज करके। कॉनिकल फ्लास्क को टॉप से सील कर दिया गया। अब मैं कॉनिकल फ्लास्क जिसमें आइस प्रेजेंट है उसका टोटल मास मेजर कर लेता हूं एंड लेट अस सपोज दैट वो टोटल मास 100 ग्राम है। तो मैंने क्या किया,
कॉनिकल फ्लास्क ली, उसमें आइस की कुछ पीसीस लिए, कॉनिकल फ्लास्क को टॉप से सील किया और मैंने कॉनिकल फ्लास्क हैविंग आइस उसका टोटल मास मेजर किया एंड लेट अस सपोज दैट मास कम्स टू बी 100 ग्राम। फिर मैं उस कॉनिकल फ्लास्क को हीट करता हूं। यू फाइंड दैट ऑन हीटिंग द आइस विल बी कन्वर्टेड टू वाटर। जब सारा आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं फिर से कॉनिकल फ्लास्क जिसमें अब वाटर है उसका मास मेजर करूंगा एंड यू विल फाइंड दैट पूरी फ्लास्क का मास जिसमें अब वाटर है अब भी वो 100 ग्राम होगा। इसका मतलब बिफोर हीटिंग आइस का मास 100 ग्राम था एंड आफ्टर हीटिंग वो जो फ्लास्क जिसमें वाटर है मास उसका 100 ग्राम। इट मीन्स दैट इन द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ आइस मास ना तो डिस्ट्रॉय हुआ ना तो क्रिएट हुआ। दिस वेरीफाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लुक एट द बोर्ड। यहां स्टूडेंट्स यहां देखेंगे हम, ये मेरे पास आइस है, बोर्ड पे देखें H2O लिखा गया है और बेस पे S। इट सिंपली मीन्स दैट सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर एंड दैट इज आइस। तो हमने एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क के अंदर मैंने आइस के पीसीज लिए, फ्लास्क प्लस आइस का टोटल मास लेट अस सपोज 100 ग्राम है। नाउ आई हीट द फ्लास्क। बिकॉज ऑफ हीटिंग ice in the flask will be changed to water. Once whole of the ice is changed to the water, I will again measure the mass of the flask now containing water. And to your surprise, आप देखेंगे कि फ्लास्क हैविंग वाटर उसका मास अभी भी 100 ग्राम है। सिर्फ डिफरेंस क्या हुआ, पहले फ्लास्क विद आइस का मास 100 ग्राम था और अब फ्लास्क विद वाटर का मास 100 ग्राम। इट मीन्स ड्यूरिंग द चेंज, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ना तो मास डिस्ट्रॉय हुआ और ना ही मास क्रिएट हुआ। अगर मास डिस्ट्रॉय हो जाता तो यहाँ फ्लास्क का मास आफ्टर द चेंज 100 ग्राम से कम मिलता हमें, और अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीटिंग न्यू मास क्रिएट हो जाता तो आफ्टर द चेंज आपको फ्लास्क विद वाटर का मास ज़्यादा मिलता। लेकिन मास बिफोर चेंज, मास आफ्टर चेंज दोनों सेम है। इट मीन्स नो मास इज डिस्ट्रॉयड, नो मास इज क्रिएटेड। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो होप करता हूँ ये फिजिकल चेंज वाला केस आपने अंडरस्टैंड किया होगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एन अदर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच वाज प्रोवाइडेड बाय लैंडोल्ट। स्टूडेंट्स, लैंडोल्ट एक साइंटिस्ट का नेम है। इस लैंडोल्ट साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सपेरिमेंटली बाय यूजिंग अ केमिकल चेंज वेरीफाई किया, और देखते हैं वो क्या वेरिफिकेशन है। तो बोर्ड के ऊपर दिस इज अ लैंडोल्ट्स एक्सपेरिमेंट, और बोर्ड पे ये जो आप एक स्पेशल अपरेटस देख रहे हैं, स्पेशल ट्यूब देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ लैंडोल्ट्स ट्यूब। दिस इज कॉल्ड एज अ लैंडोल्ट्स ट्यूब। इस ट्यूब के 2 लिम्ब्स हैं। लिम्ब स्टूडेंट्स, इसको भी हम लिम्ब कहेंगे ये, और इसको भी हम लिम्ब कहेंगे ये। मैं यहाँ लेबल कर देता हूँ, ये 1 लिम्ब है लैंडोल्ट्स ट्यूब का एंड दिस इज द अदर लिम्ब ऑफ द लैंडोल्ट्स ट्यूब। तो ये हमने एक लैंडोल्ट ट्यूब लिया है। उस लैंडोल्ट ट्यूब के एक लिम्ब के अंदर वी टेक एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, और लैंडोल्ट ट्यूब के सेकंड लिम्ब के अंदर वी टेक एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, और फिर हम टॉप से कॉर्क को यूज करके
लैंडोल्ड ट्यूब के दोनों लिम्स को पूरी तरह सील कर देंगे। दैट्स द एक्सपेरिमेंट। तो क्या हमने किया, वी टेक अ लैंडोल्ड ट्यूब, इन वन पार्ट ऑफ द लैंडोल्ड ट्यूब वी टेक aqueous solution of silver nitrate and we take aqueous solution of sodium chloride in other part of the लैंडोल्ड्स ट्यूब। और अगर अभी आप डायग्राम पे फोकस कर रहे होंगे, ये दोनों एक्वस सॉल्यूशंस आपस में मिक्स नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब क्या करना होगा, लैंडोल्ड इस एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई करने के लिए अब क्या करता है, वो इस लैंडोल्ड ट्यूब को इससे पहले कि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करे इसका टोटल मास मेजर कर लेता है। लैंडोल्ड ट्यूब जिसकी एक पार्ट में सिल्वर नाइट्रेट और दूसरे पार्ट में सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, इस लैंडोल्ड ट्यूब का मास मेजर कर लिया जाता है बिफोर द केमिकल रिएक्शन टू अकर। आफ्टर दैट दिस लैंडोल्ड ट्यूब इज विग्रसली शेकन, इसको जोरदार शेक किया जाता है। एंड स्टूडेंट्स व्हाट हैपन्स इन द प्रोसेस ऑफ शेकिंग, ये जो एक्वस सॉल्यूशंस हैं दोनों के दोनों, इन द प्रोसेस ऑफ शेकिंग बोथ दीज एक्वस सॉल्यूशंस एक दूसरे से मिक्स कर जाते हैं। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन फ्रॉम हियर एंड sodium chloride solution from here both mix with each other, and when both these aqueous solutions mix with each other, now a chemical reaction occurs in the lambdoid tube. In this chemical reaction, aqueous solution of silver nitrate reacts with aqueous solution of sodium chloride, leading to the formation of precipitates of silver chloride and aqueous solution of sodium nitrate। इस तरह से जब इस लैंडोल्ड ट्यूब को शेक किया जाता है, दोनों एक्वस सॉल्यूशंस मिक्स करते हैं और केमिकल रिएक्शन अकर कर जाती है। वंस द केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटेड, आई से वंस द केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटेड, लैंडोल्ड इस ट्यूब का मास को दोबारा से मेजर करता है और क्या आंसर उसको मिलता है कि लैंडोल्ड ट्यूब का जितना भी टोटल मास बिफोर द रिएक्शन था, लैंडोल्ड ट्यूब का उतना ही टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन है। इसका मतलब ड्यूरिंग द केमिकल चेंज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मास में कोई भी चेंज नहीं आया है। इसका सिंपल मीनिंग क्या निकलता है कि कोई भी मास रिएक्टेंट का डिस्ट्रॉय नहीं हुआ और न्यू मास भी ड्यूरिंग द रिएक्शन क्रिएट नहीं हुआ। इट मींस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट नो मास वाज क्रिएटेड, नो न्यू मास वाज जनरेटेड। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड इन दिस वे इट कैन बी वेरीफाइड। तो स्टूडेंट्स अब हम ये देखेंगे कि क्या इस लॉ का कोई लिमिटेशन है। कुछ केमिकल रिएक्शंस और पर्टिकुलरली न्यूक्लियर रिएक्शंस, उनमें हम फाइंड आउट करते हैं कि केमिकल एनर्जी, मैं रिपीट करता हूं, इन सम केमिकल रिएक्शंस एंड मेनली द न्यूक्लियर रिएक्शंस, उनमें हम फाइंड आउट करते हैं कि सम एनर्जी इज रिलीज्ड। अब क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि जिन रिएक्शंस में पर्टिकुलरली द न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये जो एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी कहाँ से आती है। तो शायद आपको नोन होगा, नहीं तो बात करते हैं एक न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट का ही बहुत थोड़ा सा मास जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, और अगर न्यूक्लियर रिएक्शन में रिएक्टेंट का ही कुछ मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, तो इसका मतलब कि रिएक्टेंट का वो मास डिस्ट्रॉय हो गया एनर्जी में। हालांकि ये मास बहुत कम है, लेकिन इसका मतलब ये जो हम कह रहे हैं कि मास कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड, ये हर केस में एक्यूरेट
नहीं है। केमिकल रिएक्शंस जो एक्सोथर्मिक हैं उनमें भी एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट होते हैं उन रिएक्टेंट के जो न्यूक्लियाई होते हैं उन्हीं का तो थोड़ा सा मास डिस्ट्रॉय हो जाता है एनर्जी में। और आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि जो मास न्यूक्लियर रिएक्शन में डिस्ट्रॉय हो जाता है एनर्जी में, उस एनर्जी को डिटरमाइन करने के लिए हम एक फेमस रिलेशन यूज करते हैं गिवन बाय आइंस्टाइन, E=mc²। E मीन्स एनर्जी जो रिलीज हो रहा है न्यूक्लियर रिएक्शन में, M मीन्स न्यूक्लियस का वो मास जो डिस्ट्रॉय हो रहा है एनर्जी में, और C मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट, क्या आपको मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है कि कुछ रिएक्शंस में, आई एम टेकिंग द केस ऑफ मेनली न्यूक्लियर रिएक्शंस, सम मास जो है रिएक्टेंट के न्यूक्लियाई का वो तो एनर्जी में डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन लॉ तो कहता है कि मास कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड। इसीलिए इस लॉ को मॉडिफाई किया गया और इसका एक मॉडिफाइड स्टेटमेंट लिखा गया। देखिए वो क्या है, ये देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। इन टूडेज मॉडर्न टाइम हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। और ये लॉ क्या स्टेट करता है? द सम टोटल ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स remains same during any physical or chemical change। तो क्या है स्टूडेंट, ये मैं क्या कह रहा हूं? तो मैं होप करता हूं आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया होगा लिमिटेशन क्या है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड पर्टिकुलरली द न्यूक्लियर रिएक्शंस, इन दीज रिएक्शंस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। और ये एनर्जी जो है कहां से रिलीज होती है? रिएक्टेंट का ही वेरी स्मॉल अमाउंट में मास जो है वो डिस्ट्रॉय होके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब कि कुछ केसेस में रिएक्टेंट का मास जो है वो डिस्ट्रॉय होता है। इसी को कंपनसेट करने के लिए, एनर्जी कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मॉडिफाई किया गया और जो न्यू लॉ फ्रेम किया गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। और ये लॉ क्या कहता है कि मैटर है वो फिजिकल और केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट कर रहा है। लेट अस सपोज दैट उस मैटर का टोटल मास एंड एनर्जी बिफोर द चेंज, उस मैटर का टोटल मास एंड एनर्जी बिफोर द चेंज इज इक्वल टू द टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर द चेंज। रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने से पहले जितना भी टोटल मास और एनर्जी है हम मेजर कर लेंगे, फिर रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर हम प्रोडक्ट का भी मास एंड एनर्जी मेजर कर लेंगे और आपको क्या मिलेगा? टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट बिफोर रिएक्शन is equal to the total mass and energy of the product after the reaction. This is law of conservation of mass. And after that, we will pick up new law of chemical combination in our next lecture, and that is law of constant chemical composition. Thank you.